मैं आप लोगों को एक वीडियो उनके बारे में जरूर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि वो जो ट्रेलर टीजर वीडियो है वो देख के आप लोग समझ ही सकेंगे कि यस, he is the man of words, he is a man of light. So yes, I would like to request our host to play the video for all of us. आप लोग वीडियोस बहुत ही ध्यान से देखिए. Yes. When I think about Prem sir, उनकी जो स्माइल है, सिंप्लिसिटी, जो उनका स्टाइल है, he's the man of the speed, inspired. प्रेम ही एक शक्ति है. नेटवर्क मार्केटिंग के भाषा में लोगों के प्रति जो उनकी इमोशंस हैं, अपने लोगों के लिए अच्छा सोचना, लोगों के अचीवमेंट के लिए सोचना, ये चीज जो है उनको बहुत बड़ा बना दी. He's touching millions of lives. उस दिन मैं प्रेम सर को मिलने के बाद मेरे को और लाइफ का क्लैरिटी मिल गया था उस दिन. ये हमेशा साथ देते हैं, कभी नहीं बोलते आप जाके करो, कि आपके साथ मैं हूं, हम कुछ करेंगे. ये वर्ड बहुत कम लीडर बोलते हैं. हमारे जो पेरेंट्स है सब लोग सर को चाहता है. एक चीज सीखा सर से, अगर आप जितना हम्बल होगे, जितना डाउन टू अर्थ होगे, उतना आपका लाइफ में अचीवमेंट भी बढ़ेगा, लोगों का ब्लेसिंग्स भी मिलेगा. कोई भी सक्सेस होने के बाद हो सकते, लेकिन सक्सेस होने के बाद, गिरने के बाद जो हिस्सा होता है ना, वो होता है टाइगर का रूप. एक टफ पोजीशन से बाहर निकलना और अपनी टीम को भी पॉजिटिव रखना, ये मुझे इनके अंदर बहुत जबरदस्त चीज है. असंभव को संभव करना, and he became the first Indian direct selling industry la the only person driving Lamborghini வந்து प्रेम सर. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई पुरानी है भारत में. ही इज द ओनली वन, एंड नाउ हमें भी लगता है ये संभव है. ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಬ್ಯೂಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. Stays humble, stays on the ground, rooted on the ground. That's what he does naturally. That's great. When we sponsor some people, later we will be known, or we will be known to the world by their name. It's like Ramakant Acharayakar. Today, Ramakant Acharayakar is known as the trainer of Sachin Tendulkar. Sponsoring Prem Kumar is an equal privilege. I am very proud of that. What Maradona for football and Prem Kumar for network marketing. Yes, my dear friends, Prem Kumar sir, the name itself says that he is an incredible person. Yes, so in the incredible, we have seen the video of the incredible, and yes, Mr. Prem Kumar sir. So yes, my dear friends, we are excited, and with this, I would like to welcome our mentor, our beloved mentor, Mr. Prem Kumar sir. So please help me to welcome with your digital hearts. Please pour some digital hearts to him to welcome in the screen Webathon series 1. Yes, so I welcome Mr. Prem Kumar sir for the first Royal Black Diamond Ambassador and the Lamborghini owner of the entire India and in the direct selling industry. So, yes sir, a very wonderful morning to you. And yes sir, very good morning. Can you hear my voice, ma'am? Yes sir, yes sir. Okay, so thank you so much for the lovely introduction, Saida ma'am. I think Saida ma'am is not in the spotlight. Saida ma'am, can you come to the spotlight? Yes, it was a wonderful vibe to have you in the beginning of this season. Thank you so much for the kind words and preparing all our participants. Yes, here we have Saida Shaheen Akhtar from Guwahati, our respected Emerald executive. So she is a leading women entrepreneur in our team. So thank you so much, Saida ma'am, for all the preparation of our people for the Webathon season 8. And yes, जो excitement आप लोग मैम साइदा मैम की वॉइस में आप सुन पा रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि this is a new season
एंड वेबथॉन सीजन 1 से लेकर 7 तक काफी चीजें हम सब लोग मिलकर सीख चुके हैं अब तक, और अब सीजन 8 में हम लोग जाने वाले हैं, जिसके अंदर वी आर फोकसिंग ऑन द 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स of our business in this new season. So welcome all of you. Let me look at Vidyarthi and let us have all our people with the camera on. Congratulations for being here. सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन. दिस इज 2023. हम लोग अभी हैप्पी न्यू ईयर कहते थे हमारे लोगों को, लेकिन आज की तारीख जो आज का डेट जो है, इट्स ऑलरेडी आई थिंक इट इज 13th जनवरी. दिन पार कर चुके हैं हम 2023 में. सो इट इज हैप्पी न्यू ईयर 13 days ओल्डर. सो डेट बदलने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अपने आप को बदलने से शायद जिंदगी ही बदल जाती है, राइट? सो लेट अस नॉट वेट फॉर द डेट, लेट अस स्टार्ट चेंजिंग आवरसेल्फ. सो आज का इस वेबथॉन सीजन 8 के अंदर आप सभी लोगों को तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहूंगा. आई वेलकम सिंसियरली ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू दिस अमेजिंग वेबथॉन सीजन 8 लर्निंग एक्सपीरियंस, जिसके अंदर हम सीखेंगे बिजनेस बिल्डिंग ब्लॉक्स. यस, we are building one person at a time, brick by brick. इसे याद रख लीजिए. We are building one person at a time, brick by brick. So that's the reason this is called as the basic building blocks. यानी एक एक ईंट पर, एक एक ब्रिक पे ब्रिक हम लोग रखने वाले हैं और अपने बिजनेस को हम लोग बिल्ड करने वाले हैं. So today we are going to talk few things. आज का जो सब्जेक्ट जो है वो वन ऑफ द 8 core steps होगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपके सामने जरूर मैं रखना चाहूंगा, राइट? सो मुझे पता है आप सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं. आपकी आवाज मैं सुनना चाहूंगा. तो एडमिन, व्हेन आई से 3 to 1 प्लीज अनम्यूट देम. सो जब मैं 3 to 1 कहूंगा तब आप लोग एक ही साथ बोलेंगे good morning Indus Viva. Okay, that would be the great way to begin. So आपकी जो एनर्जी, आपकी जो आवाज है, अगर आपके पास पानी है तो एक गुड पानी पी लीजिए पहले, ताकि आपकी आवाज ठीक हो, right? So 3, 2, 1 जब मैं कहूंगा, they will unmute you. You can unmute yourself and say good morning Indus Viva, and you can mute yourself. Okay, so let's start with a vibrant energy, with a lovely vibration. 3, 2, 1, here we go. Good morning. Good morning, Indus Viva. Good morning, Good morning, Indus Viva. Indus Viva. Good morning, Good morning, Indus Viva. Indus Viva. Indus Viva. Good morning, Indus Viva. Good Morning, all of you. So much, admin. Thank you, admin. You can mute everybody. And happy Lodi, sir. Yes, that was a vibrant good morning from all of you, and I really appreciate जो लोग आज इस प्रोग्राम के लिए तैयार होकर आए हैं. Especially, yeah, somebody's voice is still coming. Okay, good morning, Indus Viva. Okay, somebody's voice was coming very slowly, like a good strain. Good morning, Indus Viva. Okay, right. आज इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए जो लोग तैयार होकर आए हैं, तैयारी का मतलब क्या होता है और तैयारी का जरूरत भी क्या है, चलिए आज हम लोग पहचान लेंगे. When you want to go and participate in World Cup football, in India we have great footballer like from Northeast, Mr. Baichung Bhutia, right? So we have many different players in different field. अब तो फुटबॉल की सीजन चल रही है, तो चलिए let's talk about football. So if I want to become the world champion, यदि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूं, अगर मेरे अंदर ढेर सारा मोटिवेशन है, आई एम वेरी वेरी मोटिवेटेड कि मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है, क्या मैं अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीत के लेके आ सकता हूं? बिल्कुल नहीं. दैट वे मे बी many other teams and other captains were prepared in this वर्ल्ड कप अपने देश के लिए जीत कर लेकर आने के लिए. Right? And a small boy, when Kapil Dev was winning the World Cup in 1983, I believe. Yeah, 1983. बहुत सारे लोग थे वहां पर, लेकिन एक छोटा सा लड़का, उसके अंदर भी मोटिवेशन आ गया.
कि मुझे भी अपने देश के लिए एक दिन वर्ल्ड कप जीतकर लेकर आना है, लेकिन वो सिर्फ एक मोटिवेशन ना रहा, वो सिर्फ एक मोटिवेशन ना रहा। उस इंसान ने 30 साल अपने आप को, ऑलमोस्ट 25 to 30 years अपने आप को तैयार किया, प्रिपेयर किया, और इन 2011 उसी लड़के ने, जो कपिल देव की वर्ल्ड कप के टाइम पर जो पीछे खड़े होकर ही वॉज लुकिंग एट कपिल देव एज वन ऑफ द लेजेंड, वो खुद अपने आप को 30 साल तैयार करके उस ड्रीम को हासिल किया, और उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। आई थिंक आप लोग जानते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब दोस्तों, मोटिवेशन is amazing. Yes, you should be motivated, but there is something else called as preparation. अगर प्रिपरेशन नहीं है तो मोटिवेशन किसी चीज का काम का नहीं है। सो मोटिवेशन इज नॉट बिगर, बट द प्रिपरेशन इज एक्चुअली बिगर। अगर आप मोटिवेटेड इंसान हो, मुझे इंडस वीवा में एग्जीक्यूटिव डायमंड बनना है, आई वांट टू बिकम एन एग्जीक्यूटिव डायमंड इन इंडस वीवा, आई रियली अप्रिशिएट योर मोटिवेशन। लेकिन मेरा सवाल यही है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे इंडस वीवा परिवार के सदस्यों, आप लोगों से मेरा सवाल यही है, आर यू मोटिवेटेड इन इंडस वीवा, और या यू आर प्रिपेयर्ड इन इंडस वीवा? बिकॉज प्रिपरेशन ओनली कैन मेक यू विन द गेम, not just the motivation. Preparation made Argentina to lift the World Cup. Preparation made Messi to fight for his country's dream of bringing World Cup back to their country once again. So preparation stands much ahead than just motivation. So इस वेबथॉन का पहला सवाल इस सेशन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है, are you prepared or you're just motivated? Because motivation is the basic level. Everybody gets motivated, but only a champion moves ahead and prepares himself. So that's the first point. You are motivated or prepared in Indus Viva. The second point here is job is a popular choice. नौकरी जो होता है, it is a popular choice in the market, in the world, in the society we live today. जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस परिवार को हम बिलोंग करते हैं, जिस एरिया से हम हैं, जिस समाज में हम लोग जीते हैं, इस समाज के अंदर जॉब इज अ पॉपुलर चॉइस। पॉपुलर यानी ज्यादातर लोग जॉब को ही मानते हैं और नौकरी ही उनका एक चॉइस होता है। बट फॉर एन एंटरप्रेन्योर, यदि आप इंडस वीवा में जीतने के लिए तैयार हैं, अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, नॉट ओनली मोटिवेटेड, यदि आप प्रिपेयर्ड हैं, तो इस चीज को याद रखिए। यस, आज शायद आप पार्ट टाइमर हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन जॉब इज नॉट एन ऑप्शन। इस ऑप्शन से दूर रहना पड़ेगा, राइट? यदि आप जॉब से इश्क, मोहब्बत, प्यार करते हैं और शादी विवाह के साथ करना चाहते हैं, तो शायद आपकी जिंदगी आधा अधूरा हो जाने वाला है, राइट? जॉब में रहिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी जर्नी जो है, जॉब से बढ़कर एंटरप्रेन्योर बनने का जो एक चॉइस है, उस तरफ आपकी जर्नी की शुरुआत हो जाना चाहिए अब तक। So the second point for today, the first point is preparation is bigger and greater and powerful than motivation. And the second point is job is not an option. यदि आप जॉब को ऑप्शन मानते हैं आज भी, अब भी, right now, if you still believe job is an option, then my dear friend, you need to align your thinking and your action, because both are in different direction. So that's the second point for today. And the third point, तीसरा point ये है, यदि जॉब अपना ऑप्शन नहीं है, if job is not an option, then what is the option? Yes, the option is definitely Indus Viva. Indus Viva एक बेस्ट एंड बेटर ऑप्शन जरूर है, इट्स बेटर एंड द बेस्ट ऑप्शन। एंड वीवा बिजनेस को बिल्ड करना, इसका मतलब है कि साइदा शाहीन अख्तर एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर, आज उन्होंने ठान लिया कि मैं अपने आप की पर्सनैलिटी से बढ़कर कुछ चीजें सीखूंगा,
क्योंकि मैं अपनी लेवल, अपनी पर्सनालिटी, अपनी स्ट्रेंथ जो है उससे बड़ा, उससे बढ़िया कुछ मैं बिल्ड करने जा रही हूं. दैट इज व्हाट साइदा शाहीन अख्तर मैम विल थिंक. बिकॉज इंडस वीवा बिजनेस को बिल्ड करना, इसका मतलब है दोस्तों कि यू आर रेडी टू बिल्ड समथिंग ग्रेटर देन यू, समथिंग बिगर देन यू. तो इसे ध्यान में रखिए. Remember this always. You are here to build something bigger than you. वो कैसे होगा? वो कमिंग पॉइंट्स जो है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं. तो if you are here to build something bigger than you, Shahjahan built the Taj Mahal, which is bigger than him and his empire. आज मुगलों की जमाना नहीं है, शाहजहां जिंदा नहीं है, लेकिन आज भी ताजमहल जो है वो खड़ी है वहां पर और लोग उसे देखने आते हैं. सो यू आर ऑल्सो हियर टू बिल्ड समथिंग बिगर देन यू. इंडस वीवा करना, इसका मतलब दोस्तों आप अपने आप से बढ़कर, आपसे बड़ा जो है उससे आप निर्माण करने की जो प्रयास है उसमें लगे पड़े हैं. So you are here to build something greater than you. And the fourth point is, वीवा बिजनेस यदि आप करना चाहेंगे तो एक बेसिक क्वालिफिकेशन आपके अंदर मैं देखना चाहूंगा आज से. क्योंकि जैसे मैंने कहा, डेट बदलने से कुछ नहीं बदलता है, लेकिन आदमी और आदमी के आदतें बदलने से बहुत कुछ बदल सकता है. जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. दुनिया बदलना चाहते हो तो सबसे पहले बदलाव खुद के अंदर लाओ. बी द चेंज, ब्रिंग द चेंज इन यू. सो आज से मैं जरूर आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आप लोगों को मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, यदि आप इंडस वीवा में जीत हासिल करना चाहेंगे, इफ यू वांट टू विन इन इंडस वीवा जर्नी इन दिस बिजनेस एज एन एंटरप्रेन्योर, एक क्वालिटी जरूर आपके अंदर मैं देखना चाहूंगा इस साल में 2023 में, खास करके आज से मैं आपके अंदर वो देखना चाहूंगा, और वो है एक पावरफुल वर्ड जो आपकी दुनिया जो है उसे हिलाकर उससे बदल डालने की ताकत रखती है. और वो वर्ड, वो शब्द, वो एक पावरफुल वर्ड है जिसका रियल पावर आप जानेंगे जब आप उससे अप्लाई करेंगे. और वो वर्ड है दोस्तों, प्लीज लिख लीजिए अपने बुक में, अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, और वो है डिसिप्लिन. शिद्दत, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिसिप्लिन. With a lot of discipline only comes a lot of success. तो आपके अंदर कितना डिसिप्लिन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. So to build something which is greater than you, you need to have a lot of discipline. So Viva business demands discipline. और definitely हम लोग जानते हैं आज इंडिया के अंदर द रिचेस्ट मैन हु इज इन द रेस एंड इन द वर्ज ऑफ बिकमिंग नेक्स्ट रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जो एक समय पर ही वाज आल्सो अ सिंपल एम्प्लॉई वर्किंग फॉर समबडी एल्स, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि नौकरी का मतलब एक स्लेवरी है, एक बंधन है, एक लिमिटेशन है, आजादी नहीं है वहां पर. और वहां से वो आजाद होना चाहते थे और वो आजाद हो गए, और आज दुनिया के अंदर उनका नाम जो है बहुत बड़ा हो गया है. मैं गौतम अडानी जी की बात कर रहा हूं. तो आजादी की ओर अगर आप कदम रखना चाहोगे तो रिमेंबर दिस, जॉब इज नॉट अ चॉइस, इंडस वीवा इज द राइट पाथ. और इंडस वीवा को यदि आप बिल्ड करना चाहेंगे तो इसका मतलब आप अपने आप से बेहतर कुछ यहां पर निर्माण करने की बात हो रही है. यू आर बिल्डिंग समथिंग विच इज ग्रेटर देन यू एंड द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द डिसिप्लिन. सो आज का जो पॉइंट है फिर से मैं यहां पर रिमाइंड करना चाहूंगा. द फर्स्ट पॉइंट इज, आर यू मोटिवेटेड या यू आर प्रिपेयर्ड? सवाल पहला. सेकेंड वन, जॉब इज नॉट एन ऑप्शन, इंडस वीवा इज द राइट वे. एंड थर्ड वन, यदि आप इंडस वीवा
करना चाहते हैं, इसका मतलब यू आर बिल्डिंग समथिंग विच इज ग्रेटर देन यू। एंड द फोर्थ पॉइंट, इन दिस विवा बिजनेस को बिल्ड करने के लिए डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो डिसिप्लिन आपके नस नस में, आपके हर एक कदम में, आपके हर एक एक्टिविटी में हम देखना चाहेंगे इस साल में। और गौतम अडानी जी की जो एग्जाम्पल है मैंने दिया यहाँ पर, मूविंग फ्रॉम स्लेवरी टू फ्रीडम, इसका मतलब मूविंग फ्रॉम जॉब to business. So now let's also be having the mindset of an entrepreneur इस साल में। तो आपको as an entrepreneur you should be ready to arrange some working capital in order to move your business in a faster manner, in a faster pace. यदि आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से आगे लेकर जाना चाहेंगे तो यू शुड बी एबल टू हैव इनफ लिक्विडिटी विथ यू। कहीं पर अगर आपको फिर से री इन्वेस्ट अपने आप पर, अपने आप के बिजनेस के अंदर, अपने आप की टीम को ग्रो करने पर यदि आपको इन्वेस्ट करना पड़े तो पीछे हटिएगा मत, क्योंकि जब आप पीछे हटोगे तो आप पीछे ही रह जाओगे। सो बी रेडी टू टेक द रिस्क एंड 2023 लेट इट बी द ईयर ऑफ गिविंग योरसेल्फ अ चांस। इस साल में आप दूसरों पर भरोसा करें कि नहीं, विश्वास रखें कि नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन इन दिस ईयर गिव अ चांस टू योरसेल्फ। अपने आप को एक बार मौका जरूर दीजिए। अपने आप पर, अपने आप का जो नंबर है उस पर इस बार विश्वास कर देख ही लीजिए, क्योंकि यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करें, अपने आप को आगे बढ़ने की इजाजत या परमिशन यदि आप नहीं देंगे तो कौन आप पर विश्वास करेगा। So remember, in this year, take the risk and move ahead. Definitely, it should be a calculated risk. So, यदि आपको बिजनेस में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट भी करना पड़े, जैसे आपको शायद you want to buy some good attire, ड्रेस आपके लिए, अपने आप के लिए ब्रांड न्यू सूट खरीदना चाहेंगे, कुछ 4-5 अच्छे शर्ट्स खरीदना चाहेंगे, राइट? कुछ लोगों को जब हम देखते हैं तो हमें पता है यस, ये इंसान आज इसी ब्लेजर के साथ आने वाला है, क्योंकि 4 साल से एक ही ब्लेजर को पहन कर उस ब्लेजर की बेइज्जती हमने कर डाला। सो हमारा ब्लेजर, हमारी जो शर्ट, हमारा जो लैपटॉप हो सकता है, वॉच हो सकता है, मोबाइल, गाड़ी, कुछ भी हो सकता है। सो इस साल में डोंट बी अ कंज्यूमर माइंडेड या कस्टमर माइंडेड, बी एन एंटरप्रेन्योर माइंडेड। एंड अपने आप के बिजनेस के अंदर यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना भी पड़े तो प्लीज गो अहेड एंड इन्वेस्ट एंड मेक योर बिजनेस फास्टर। क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, शायद आपका बिजनेस जो है वो अटका हुआ है। क्योंकि कुछ लोग लैपटॉप 4 साल से अभी तक लेते ही आ रहे हैं। हमने कोरोना से पहले बताया, 2020 मार्च में जब लॉकडाउन हुआ उसी टाइम से हमने बताया कि लैपटॉप खरीद लो, वाईफाई अपग्रेड कर लो, ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपके घर पे होना चाहिए, राइट? वी टोल्ड एवरीथिंग। लेकिन आज भी कुछ लोग मोबाइल पर ही खेल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट? सो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, मेक सम वर्किंग कैपिटल रेडी, मेक सम वर्किंग कैपिटल रेडी, सो बी रेडी फॉर सम एक्सपेंसेस। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हैं, यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है, जैसे आपको बोलना आता है या आप बहुत ही एक टैलेंट रखते हैं आपके अंदर जो थोड़ा सा डिफरेंट है, लोगों के अंदर वो टैलेंट नहीं है, वो टैलेंट शायद शुरुआत में आपका काम आ सकता है, आप कामयाब हो सकते हैं शुरुआत में कुछ समय तक, लेकिन लंबी दौर पर आपको अपने आप के टैलेंट से ज्यादा सिस्टम पर विश्वास करना होगा। और बिजनेस आपके टैलेंट पर बेस्ड है तो आप एस क्वाड्रेंट में अटक जाओगे, क्योंकि हमारा टारगेट एस क्वाड्रेंट नहीं, हम बी क्वाड्रेंट में पहुंचना चाहते हैं, राइट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट। तो बिजनेस को हमेशा आपके खुद के टैलेंट पर विश्वास रखते हुए उस पर बिल्ड ना करें। आपके टैलेंट तो आपका टैलेंट है, वो हमेशा आपका है, लेकिन टैलेंट बेस्ड बिजनेस आपका बिल्ड नहीं होना चाहिए। जैसे आप किसी को जाकर साइन अप कर सकते हैं, इट्स अ गुड टैलेंट, लेकिन यदि आपके टीम में 10 लोग आपने खड़ा किया जो ये काम कर सकते हैं, उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। इंडिविजुअल टैलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट जो है वो डुप्लीकेटेबल नहीं है, लेकिन स्किल जो होता है वो लोगों को सिखा सकते हैं और वो एक सिस्टम में एक एडवांटेज माना जाता है।
सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट इज नॉट नीडेड। और हम लोग इंडस वीवा का जो बिजनेस है इसको बिल्ड करना, इसका मतलब हम लोग अपना टीम जो है उसे बिल्ड करेंगे, और इस टीम को हम लोग बिल्ड करेंगे जस्ट लाइक अ ट्रेडिशनल बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक माइनस पॉइंट या एक डिसएडवांटेज मुझे देखने को मिला, मुझे वो यही है कि लोग इस बिजनेस को बिजनेस के नजरियों से नहीं देखते। और जिस दिन आप बिजनेस को बिजनेस की तरह देखना शुरू करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, सब कुछ बदल जाएगा। राइट? नो मोर मेलोड्रामा। सर मेरे टीम से वो छोड़ के जा रहा है। अरे वो आपके परिवार थोड़ी छोड़ के जा रहा है, वो टीम छोड़ के जा रहा है, जाने दो। राइट? ये जरूरी नहीं है कि जिन लोगों को आपने लाया वो सारे लोग आपके साथ खड़े रहें। राइट? अगर आपके सारे लोग छोड़कर भी चले गए, सबको बुलाओ और सेंड ऑफ पार्टी दे दो। डोंट बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो बिजनेस को बिजनेस के एंगल में नहीं देखता है। लुक एट द बिजनेस इन अ बिजनेस एंगल, रेस्पेक्ट द पीपल। लोगों को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनके फीलिंग्स को समझना पड़ेगा और उनको बिजनेस के बारे में समझाना पड़ेगा। राइट? इसलिए आपको इमोशंस आपके अंदर होना चाहिए। यू आर ए ह्यूमन बीइंग, आपके अंदर जरूर इमोशंस होना चाहिए, लेकिन आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए। हैव इमोशंस, अपने लोगों के लिए सोचना, उनके ग्रोथ के लिए सोचना आपकी क्वालिटी जरूर होना चाहिए, लेकिन डोंट बिकम इमोशनल। राइट? यदि आपको लगता है कि कुछ लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो रहे, मैंने ये खुद अपनी फैमिली मेंबर्स जिनको मैंने बिजनेस में लाया, मैंने उनको खुद जाने दिया। मैंने खुद उनको कहा कि भाई ये आपकी बस की बात नहीं है, आप कुछ और कर लो। क्योंकि मुझे पता चला कि ये लोग बिजनेस के बराबर अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने उनको खुशी से जाने दिया। तो आप भी प्लीज कृपया इस फैमिली की, इस रिलेशनशिप की जो एक चक्रव्यूह है उस पे मत पड़िए और उससे बच के रहना। सो यदि आपकी टीम से कुछ लोग जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए खुशी से। डोंट बी इमोशनल। इस बिजनेस को एक ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह आप करना शुरू कीजिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, यदि किसी ने एक किराना शॉप ओपन किया गुवाहाटी के जीएस रोड में, मानते हैं कि साइदा मैम उनके एक किराना शॉप उन्होंने ओपन किया जिसके अंदर सारी मतलब ग्रोसरी सब कुछ है वहां पर। राइट? और वो दुकान खोलकर जब हम अपनी धंधा जो है उसको शुरू करते हैं, हम वंस वी ओपन द शॉप, एक बार उसकी इनॉग्रेशन हो गया तो रोज आकर वो शॉप में बैठेंगे मैडम, और कस्टमर एक दिन, 2 दिन, 4 दिन तक, हफ्ते भर, 1 महीने तक भी अगर कोई नहीं आए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज हम जाएंगे, शटर खोलते हैं और साफ सफाई करके, पूजा या नमाज या भगवान को याद करके हम वहां पर जो होता है काउंटर, वहां पर बैठते हैं। सारी चीजें जो हमें बेचने के लिए तैयार रखे हैं वो सब कुछ वहां पर होगा। इसको एक ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं। हम इंडस वीवा में ये क्यों नहीं करते? हम अपनी मतलब दुकान खोली, यहां पर 12 प्रोडक्ट रिटेल करवाना है। राइट? 1 बार, 2 बार कस्टमर 3 बार रिजेक्ट किया तो हमें ऐसे लगता है कि अरे हमें बिजनेस बंद कर देना चाहिए। क्यों? ट्रेडिशनल बिजनेस में 1 महीने तक अगर कोई कस्टमर नहीं भी आया तो दुकान खोल के हम लोग बैठते हैं। ये ट्रेडिशनल बिजनेस का एक तरीका है। लेकिन इंडस वीवा बिजनेस में 2 लोगों ने इनकार क्या कर डाला कि हम अपनी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, इस सोच में लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए दोस्तों। बिजनेस को एक बिजनेस की तरह जानना, समझना और समझदारी के साथ इस बिजनेस को एज ए ट्रेडिशनल बिजनेस यदि हम करना शुरू करेंगे, दैट विल बिकम अ लवली एक्सपीरियंस फॉर यू। ये हो गया आज का जो बेसिक पॉइंट जो आज मैं आपको बताना चाहता था। राइट? एंड डेफिनेटली मनी सर्कुलेशन के अंदर जो मार्केट में आज की तारीख में आपको बहुत सारी कंपनियों को देखने को मिल रहा है, बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल रहा है आपको, जिसके अंदर मनी सर्कुलेशन की जो अगर कुछ चीजें हैं तो वहां पर पैसा लोगों के बीच में रोटेट किया जाता है, विच इज इलीगल इन इंडिया एंड इट इज बैंड। अगर यदि आप उस प्रकार की कंपनियों के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे
क्योंकि वो आपको आकर कहेंगे कि भाई हमारे कंपनी में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैसा लगा डालो और घर पे बैठ जाओ और खूब कमाओ। My dear friends, that is illegal. It is a pyramid scheme. It is banned in India according to the Price Chit and Money Circulation Banning Act of 1978. तो खबरदार। तो मनी सर्कुलेशन के अंदर पैसा रोटेट किया जाता है और उसका अलग अलग रूप होता है। जैसे कुछ टाइम पहले वो आ गया, सर्वे के नाम पर आ गया, फिर उसके बाद फोरेक्स को लेकर लोग आ गए, फिर उसके बाद अलग अलग नाम से वो आते हैं। आज कुछ क्रिमिनल करेंसी, बिटकॉइन, क्रिप्टो, इस प्रकार के अलग अलग नाम पर अवतार, नया अवतार हर बार होता है। उस नाम पे लोग मार्केट में हर बार आते हैं और जो वो लेकर आते हैं उसी के साथ गायब भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको गांव, घर, परिवार, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं उनके स्पीच में, घर, गांव, परिवार, सब कुछ उनको छोड़ना पड़ता है जो इन चीजों के पीछे लगते हैं। तो हमें मनी सर्कुलेशन के अंदर अटकना नहीं, उन चीजों के अंदर जाना नहीं चाहिए। वी आर बिल्डिंग अ वेरी लीगल एंड अ प्रीमियम बिजनेस जो इंडस वीवा है। और इंडस वीवा के अंदर डायरेक्ट सेलिंग, जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर कस्टमर की जो प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन जो होता है वो सर्कुलेट होता है। बस इतनी सी फर्क है। यहां पर सिर्फ पैसा सर्कुलेट होता है, मनी सर्कुलेशन जो इलीगल है, और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट का जो सेटिस्फैक्शन है वो सर्कुलेट होता है। चलिए, आज का जो टॉपिक है, ये फाउंडेशन है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था बिफोर गेटिंग इनटू द मेन सब्जेक्ट। आज का जो सब्जेक्ट है, आज की जो 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर, उसका जो पहली चीज जो है वो आपके सामने रखना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड एज थॉट्स बिकम थिंग्स। राइट साइदा मैम, कैन यू सी बिहाइंड मी? इज इट कमिंग प्रॉपरली? थॉट्स बिकम थिंग्स? Yes, sir. Yes, sir. Can you see this? Okay, thank you so much. Yes. So thoughts become things. चलिए थोड़ा सा इस पर कुछ कहना चाहूंगा आज के इस सेशन के अंदर। One of the best thing जो मेरी जिंदगी में मैंने जो सीखा है, उनमें से कुछ चीजें हैं जो बेस्ट मानता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लिखना मैंने सीखा। बचपन में स्कूल में मुझे सिखाया गया राइटिंग, और आज थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा द पावर ऑफ राइटिंग पर, क्योंकि आप हमेशा देख सकते हैं कि मेरे टेबल पर 2-4 पेन और 2-4 किताब हमेशा होता है, क्योंकि सारी चीजें मुझे लिखना पसंद है। एंड राइटिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल। तो एज एन एंटरप्रेन्योर you are going to have thousands and thousands of ideas. हजारों चीज आपके दिमाग में, आपके आइडिया में हमेशा आप पाने वाले हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। तो रिमेंबर दिस टूल। अगर 2023 को शानदार बनाना चाहते हैं, there is one powerful tip I would love to give to all of you: the power of writing. हर वक्त आपके पास अगर लिखने की आदत नहीं है तो आज से लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, ऊपर वाले ने अपने नसीब पर भी कुछ लिखा हुआ है। राइट? यदि आपको लगता है कि नसीब भी अगर यदि आप बदलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज योर फ्यूचर, तो ये इन्हीं हाथों से एक किताब पर जब आप लिखना शुरू करोगे, आपकी जिंदगी में मिरेकल्स, आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो है वो आप बदल डालोगे दोस्तों। सो द पावर ऑफ राइटिंग, जिसे कभी आपको मिस नहीं करना चाहिए। सो फिर से मैं आपसे विनती करूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा स्ट्रांगली, यदि आपके अंदर ये आदत नहीं है तो नाउ ऑनवर्ड्स प्लीज गो अहेड। हाँ, डिजिटली भी आप चीजों को मोबाइल पर टाइप कर सकते हैं, मोबाइल पर आप टाइप करके रख सकते हैं। मोबाइल पर भी लिखने की एप्स आज बहुत सारी हैं, जिसमें लिखने से वो अपने आप एक डेटा में कन्वर्ट होकर एक नोट्स में बदल जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप इन हाथों से लिखोगे ना, इट इज अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम कनेक्शन टू योर ब्रेन, इट इज वायर्ड। जब आप किताब पर लिखोगे, इन पन्नों पे जब आप लिखोगे, जब यहां पर आप लिखोगे, वो एक्चुअली सिर्फ इन पन्नों पे, इस पेज पे नहीं, इस किताब में नहीं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी लिखना शुरू करोगे। और आपको तो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पता ही है।
आप सभी लोग पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते ही हैं। तो आपका ब्लूप्रिंट या सक्सेस की जो चीजें हैं वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में है। जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, आप हासिल करना चाहते हैं, आपकी जो लक्ष्य है, वो सारी चीजें सिर्फ दिमाग में रहने से यहीं के यहीं आप उसे पाएंगे 2, 4, 5, 10 साल के बाद भी। यदि आप उन चीजों को डाउनलोड करना, इसको कहते हैं रियल डाउनलोड, यहां से यदि आप डाउनलोड करोगे आपकी किताब में, when you start writing it, पता है, you are activating the super power of the universe। जब आप लिखना शुरू करोगे दोस्तों, इस कायनात के अंदर जो बहुत ही पावरफुल चीज जो है, एक पावर, सुपर पावर जो आप कह सकते हैं, यूनिवर्स कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, आप जो भी नाम उसको दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। उस पावर को आप जगाओगे, उसे एक्टिवेट कराओगे और अपनी चीजों को जो आप लिखते हैं उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो चीजें आपको जरूरत है, वो सारी चीजें ये कायनात जो है उसे आप तक मिलाने के लिए एक्टिवेट हो जाती है। इसे बिलीव करिए। तो आज से एक पावरफुल आदत, एक पावरफुल हैबिट आपके अंदर आपको लगाना पड़ेगा, वो है द पावर ऑफ राइटिंग। तो 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर एक फर्स्ट ब्लॉक है जिसके अंदर आज हम लोग जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे अप्लायंस कहते हैं आप लिखो, ये करो, वो करो, लेकिन हम करते नहीं। तो दोस्तों प्लीज इस हैबिट को अपना बना लीजिए। आज से एक नई आदत आपके अंदर डालिए, वो है लिखना। राइट? किसी का नाम याद आ गया, लिख लो। एक आइडिया आपको आ गया दिमाग में, लिख लो। क्योंकि जो आपकी दिमाग में एक दिन में 60,000 थॉट्स, मतलब इसके अंदर पैदा होता है, इट गेट्स क्रिएटेड। आपके दिमाग में दिन में ऑलमोस्ट 60,000 थॉट्स आर कमिंग। एंड लेट मी टेल यू, जो आपके माइंड में जो सोच, जो विचार, जो ख्याल आता है ना, इट इज कॉल्ड एज द अल्फा सजेशन। अल्फा सजेशन यानी इट इज कमिंग फ्रॉम द डिवाइन। उस आइडिया पर यदि आप काम करना शुरू करोगे, वन डे इट विल क्रिएट अ डिफरेंट वर्ल्ड फॉर यू। जैसे कुछ 8-10 साल पहले एक इंसान कहीं पर बैठे थे, कुछ सोच रहे थे, उनको सडनली एक ख्याल आया कि अरे यार, एक मूवी बनाया जाए और उस मूवी के अंदर कुछ कैरेक्टर इस प्रकार की हो और उस मूवी का बैकग्राउंड इस प्रकार की हो, म्यूजिक इस प्रकार की हो। तो उन्होंने लिखना शुरू किया, जिस आदमी का नाम है SS राजमौली। कितने लोग राजमौली को जानते हैं? यस, यदि आप नहीं जानते हैं तो मुझे बताने दीजिए। राजमौली जी वो हैं जिन्होंने बाहुबली फिल्म जो है इंडिया में बहुत ही एक ब्लॉकबस्टर हिट है, वो उन्होंने दिया टू दी सिनेमा वर्ल्ड। कितने लोग बाहुबली पसंद करते हैं? बाहुबली की कैरेक्टर, मूवी। यस, आई एम अ बिग फैन ऑफ बाहुबली, राइट? तो बाहुबली वॉज वंस अपॉन अ टाइम अ थॉट, एक छोटी सी थॉट, एक अल्फा सजेशन राजमौली जी के दिमाग में आया। एक कैरेक्टर होना चाहिए और उस कैरेक्टर के बेसिस पर एक माहिष्मति और एक परिवार, उस परिवार में जो होता है एक कहानी, और इस कहानी को पेश किया जाए। राइट? राजमौली जी इज अ स्टोरी टेलर। ही इज अ स्टोरी टेलर। तो स्टोरी टेलर ने आज साबित कर दिया कि हजारों करोड़ की व्यापार एक स्टोरी टेलर भी कर सकता है, और करोड़ों में वो प्रॉफिट भी कमा चुके हैं। और उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग में जो चीजें थी उससे उन्होंने कैप्चर किया और एक किताब में लिखना शुरू किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, एज एंटरप्रेन्योर्स, डोंट फॉरगेट द पावर ऑफ राइटिंग। सो फर्स्ट थिंग इज थॉट्स बिकम थिंग्स। हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। द सेकंड पॉइंट हियर इज द पावर ऑफ राइटिंग, जो हमें भूलना नहीं चाहिए। So if you start writing today onwards, you will be able to see amazing changes.
आपकी टीम में कितने लोग हैं, लिखना शुरू कीजिए। आपकी टीम में कितनी स्टार्स हैं, लिखना शुरू कीजिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, उसको भी ड्रॉ करना, उसको भी लिखना शुरू कीजिए। और जो 2023 में आप क्या क्या करना चाहते हैं, उससे भी लिखना शुरू कीजिए, राइट। और आप 2023 के बाद लाइफ में जो बनना चाहते हैं, उससे भी लिखना शुरू कीजिए। आप बहुत ही सरप्राइज हो जाओगे दोस्तों, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, आपको पता नहीं, मतलब इतनी सारी आइडियाज आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे कि यू विल बी सो मच सरप्राइज्ड। सो डू नॉट इग्नोर राइटिंग, द पावर ऑफ राइटिंग। सो 2023 में वन मोर हैबिट विच विल एक्चुअली एलिवेट यू टू द नेक्स्ट लेवल। जैसे मैंने कहा, मोटिवेशन कैन नॉट मेक यू रिच एंड फेमस, द स्किल्स एंड नॉलेज कैन मेक यू रिच एंड फेमस, एंड वन ऑफ द स्किल वुड बी the power of writing. So आज का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, उसका नाम है लिस्ट मेकिंग। So let us learn this basic building block very clearly. लिस्ट मेकिंग आपका पहला बिल्डिंग ब्लॉक है। Never stop making a list. 2014 फरवरी में इंडस विवा कंपनी की लॉन्च हुई, एंड 2013 नवंबर, आई थिंक, यस, इन द मंथ ऑफ नवंबर, रेस्पेक्टेड चेयरमैन, हमारे रेस्पेक्टेड सीईओ अभिलाष जी, और चेयरमैन अंसर सर, उन्होंने कुछ गिने चुने लोगों को इनवाइट किया बैंगलोर की जो शेरेटन, ग्रैंड शेरेटन होटल जो है, नॉट द शेरेटन ग्रैंड जहां पर स्टार समिट होता है, वो नहीं, ग्रैंड शेरेटन है। ग्रैंड शेरेटन है यशवंतपुर बैंगलोर में, और वहां पर उन्होंने इनवाइट किया कुछ खास लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में कुछ खास ढूंढ रहे थे और करना चाहते थे। अराउंड 150 100 से 150 लोगों की एक गैदरिंग हुई थी, और उसके अंदर मुझे भी इनवाइट किया गया, और मैंने अपने कुछ लोगों को भी वहां पर इनवाइट किया। और आज भी यदि आप मुझे पूछोगे, वो लिस्ट मेरे पास पड़ा है। आज भी वो लिस्ट मेरे पास पड़ा है। यदि आप कभी मुझे मिलोगे तो मैं अपनी हार्ड डिस्क से वो लिस्ट निकाल के आपको दे सकता हूं। मैंने वो स्टोर करके रखा है, और जो पॉइंट्स उस मीटिंग में मैंने जो सीखा, वो भी मैंने नोट करके रखा है। वो भी मेरे पास, वो कॉन्फ्रेंस पैड ग्रैंड शेरेटन 2013, वो आज भी मेरे पास है। क्यों ये सब कुछ आपको बता रहा हूं दोस्तों? बिकॉज दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ राइटिंग। तो लिस्ट मेकिंग आपकी आदत होना चाहिए आज के बाद। जो भी आपसे पूछा जा रहा है, कितने लोग आपकी तरफ से आरटीपी में आने वाले हैं, ऐसे सोचने से अच्छा होगा, जैसे मेरे मेंटर अभिलाष सर ने मुझे हमेशा सिखाया, अ शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, अ शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। तो जिन लोगों को आप बिजनेस में इंक्यूबेट कर रहे हो, माय डियर फ्रेंड्स, आप उनको कुछ भी सिखाने से पहले लिखना सिखाओ। ये नहीं कि उनकी हाथ पकड़कर आ ई राइट, वो नहीं सिखाना है। उनको चीजों को एक डायरी में रिकॉर्ड करने की आदत या एक स्किल जो है, वो आप उनको सिखाइए। तो पहला कदम डायरेक्ट सेलिंग में, इंडस विवा में यदि आप सफल होना चाहेंगे, द फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक इज लिस्ट मेकिंग। तो जब आप एक नए इंसान को बिजनेस के अंदर लेकर आते हैं, पहले उससे 12 प्रोडक्ट रिटेल कराने के वक्त ऐसे ही मत जाओ। जैसे मैंने कहा, मोटिवेशन विल बी डिफीटेड बाय प्रिपरेशन। तो पहले उस इंसान के साथ बैठकर, उस आदमी के साथ, उस रिटेलर के साथ बैठिए, उससे पूछिए कि आपकी हॉट सर्कल क्या है। हाँ, अंकल डायबिटिक हैं, अंकल का नाम लिखना, उसके बगल में आई कॉफी लगाओ।
मेरे घर में एक मेरे सिस्टर हैं या मेरे मदर हैं जो उनके वजन कम करना चाहते हैं। ओके, सिस्टर आई स्लिम या आई ग्लो। मदर के लिए मैं आई केयर देना चाहूंगा। ओके, मदर या आंटी उनके बगल में लिखिए आई केयर। सो इस प्रकार रिटेलिंग की शुरुआत करने से पहले भी एक लिस्ट किया जाए। तो लिस्ट मेकिंग is the first building block of our business. So first list is the list of customers to retail 300 PV products. यदि उन्हीं कस्टमर्स के साथ जब आप 1-to-1 पर या डिजिटली जब आप मिलने जाते हैं तो डोंट डायरेक्टली टेल एंड गो एंड ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट। सबसे पहले प्रोडक्ट देने से पहले जो भी आपको पता है रिटेलिंग के लिए आई डू वी डू यू डू, तो उस कस्टमर से पूछना, एक पेपर खोलना, राइट, डिजिटली या फिजिकली। फॉर एग्जांपल यू आर मीटिंग फिरोजा बेगम मैडम, राइट, मैडम यू कैन स्माइल, यस मैडम स्माइल कर रहे हैं फिरोजा बेगम। तो फिरोजा बेगम जी के घर पे गए तो लिख लीजिए और पूछिए मैम आपको हेल्थ की क्या क्या चैलेंजेस है। तो मैम विल टेल यू आई हैव नीड पेन, या मे बी मुझे रात में नींद नहीं आती है, वॉट एवर मे बी द इश्यूज। वो सारी चीजें आप लिस्ट डाउन कर लीजिए ताकि प्रोडक्ट देने के 15 दिन के बाद जब आप री ऑर्डर के लिए जाओगे तो कम से कम जब आप पूछोगे मैम आपने कहा था आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, शायद आपको नींद रात को नहीं आती है, अब आई पल्स या आई केयर लेने के बाद जब आप लोगों से पूछोगे कि कोई फायदा हुआ तो लोग शायद बोलेंगे इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन उनकी समस्याएं जो है उसे लिख कर जब उसे नोट डाउन करके दोबारा जब आप उसे दोहराओगे, उसकी बात उनके सामने करोगे, उनको बढ़िया सा फीलिंग लगेगा और डेफिनेटली उनमें से कुछ सुधार उन्होंने यदि पाया तो डेफिनेटली वो आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों गेस व्हाट, उसी चीज से ही आप अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट उनको दोबारा रिटेल कर सकते हैं, राइट। सो रिमेंबर द पावर ऑफ राइटिंग। तो फर्स्ट मेक अ लिस्ट ऑफ कस्टमर्स जिनको प्रोडक्ट्स रिटेल किया जा सकता है, और कस्टमर के साथ जब इंटरेक्शन होती है वहां पर भी आप नोट डाउन करना भूलिएगा मत। और व्हेनेवर यू कॉल द कस्टमर, जब आप फॉर एग्जाम्पल फिरोजा बेगम जो मैम को आप कॉल करेंगे दोबारा तो आपके सामने वो बुक होना चाहिए और उन्होंने कब शुरू किया आई केयर, वो डेट भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। लेट मी गिव यू अ वेरी पावरफुल टिप वन मोर टिप अगेन, वो है डेटा। आप जो भी करोगे बिजनेस के अंदर, लेट एवरीथिंग बी डेटा। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर पावरफुल रिसोर्सेज माय डियर फ्रेंड्स। तो हर इंसान के साथ जब इंटरैक्शन होती है आपके सामने बुक होना चाहिए। ये मत सोचो हाँ मैं आज मुबारक के साथ बात कर रहा हूं, अच्छा मुबारक आप कहां पर हो, औरंगाबाद, अच्छा क्या कर रहे हो, फलाना आदमी से मिलने आया हूं, ठीक है। सिर्फ ये सुनोगे तो अगली बार जब मुबारक को कॉल लगाओगे तो उस टाइम पे आपको याद नहीं होगा पिछली बार मुबारक ने मुझे क्या कहा था। यदि आपने मुबारक के नाम पर एक शीट मेंटेन रखा तो नेक्स्ट फोन कॉल में आप पूछोगे यस मुबारक मैंने आपको लास्ट फ्राइडे कॉल किया तो आपने कहा कि आप औरंगाबाद पे हो, क्या अभी भी आप औरंगाबाद में हैं या मुंबई वापस चले गए? यस आप फलाना मिस्टर कृष्णा से मिलने गए थे, क्या हुआ? तो दोस्तों इसको कहते हैं केयरिंग। लेट मी टेल यू, व्हेन पीपल डोंट नो हाउ मच यू केयर, दे डोंट केयर हाउ मच यू नो। कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उनको नहीं लगता है आप उनके फिक्र करते हैं, उनके ख्याल रखते हैं। तो द पावर ऑफ राइटिंग गोज ऑन एंड ऑन। मैं अपनी जर्नी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से लेकर आज तक और आगे भी मैं लिखने की जो पावर है इसको जानता हूं, इसको पहचानता हूं, इसे मानता हूं और इसे मैंने अपनाया। तो गो ऑन विद दिस एटीट्यूड ऑफ राइटिंग डाउन एंड रिकॉर्डिंग ऑल दैट विच इज नीडेड फॉर योर बिजनेस।
सो द फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर बिजनेस, आज अभी तक हमारे साथ 753 लवली पीपल आर स्टिल कनेक्टेड. अप्रिशिएट योर कमिटमेंट दोस्तों. जैसे मैंने कहा, मोटिवेशन से कुछ नहीं बदलता, लेकिन प्रिपरेशन सारी चीजों को पीछे छोड़ देता है. राइट. सो आपकी प्रिपरेशन 2023 के लिए यहां पर मुझे नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है कि आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं. मैं अप्रिशिएट करूंगा यदि नेक्स्ट वीक हमारे मोबाइल पार्टिसिपेंट्स, यदि आप एक लैपटॉप में एक शानदार बैकड्रॉप के साथ यदि आप यहां पर मौजूद होंगे हमारे इस वेबथॉन के अंदर, मैं जरूर मानूंगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं. और एक ग्रीन स्क्रीन भी पीछे लगाना भूलिएगा मत, क्योंकि एक पर्दा काफी है आपकी जो प्रेजेंस डिजिटली जो है उससे और प्रोफेशनल बनाने के लिए. जैसे आप साइदा मैम को देख सकते हैं, शी इज सिटिंग इन अ फैंटास्टिक बैकग्राउंड विद अ ब्यूटीफुल वर्चुअल बैकग्राउंड. सो दैट इज हाउ यू नीड टू प्रेजेंट योरसेल्फ. चीजें बहुत छोटी है, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है. Right? So my dear friends, with that we have come to the end of the Webathon Season 8 episode number 1. 8 हफ्तों की ये सफर है. लगातार बने रहिए हमारे साथ और सीखेंगे मिलकर कुछ ऐसी चीजें जिससे सीखकर हम ऐसी कुछ चीजें हम लोग अपनी लाइफ में लाएंगे, कुछ ऐसे बिजनेस बिल्ड करेंगे जो अपने आप से भी बढ़कर कुछ शानदार हो जाए. राइट. सो इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करेंगे. 7 more weeks लगातार मैं कमिटेड हूं आपके साथ रहने के लिए, क्योंकि मैं आपकी साथी और आपके हम सफर प्रेम कुमार रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर आज की इस सेशन से साइन ऑफ करते हुए